بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم تاریخ اسلام کی قسط نمبر سلسلہ وار قسط نمبر 67 کو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ تیموریہ سلطنت کا آغاز کیسے ہوا، ابتدا کیسے ہوئی۔ تو دوستو، تیمور کی شخصیت کے اندر دین اور دنیا کی یہ رسا کشی اپنی انتہا پر تھی۔ یہاں کہیں بھی وہ فتح حاصل کرتا اس بات کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھتا کہ مساجد اور صوفیہ کرام کے مقابر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے یا بھولے سے بھی علماء کا کہیں قتل نہ ہو جائے۔ لیکن وہ ایک پیدائشی جنگجو تھا۔ اس کی بنیادی فطرت نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس دنیا کا آقا بن جائے، جسے وہ جانتا تھا۔ اس کی سیکولر سیمیابی فطرت نے قرآن کے ان مقدس اصولوں کو پلٹ ڈال دیا، جہاں یہ کہا گیا کہ تم اپنے دینی بھائیوں کا خون ناحق ہرگز نہ بہاؤ۔ لیکن اقتدار کی محبت نے اس آسمانی حکم کی پرواہ نہ کی۔ وہ ان کے رحم دل تھا جو اس کے آگے سر جھکاتے تھے۔ حکم عدولی کرنے والوں کے لیے وہ بے انتہا سنگ دل تھا۔ سیکولر اور مقدس اقتدار دنوں برقی رو پوری اسلامی تاریخ میں ممتازی طور پر بہتے رہے ہیں اور بہتے چلے آ رہے ہیں۔ تیموری ایک تاتاری تھا۔ وہ سمرقند کے قریب خراسان میں 1327 میں پیدا ہوا، ایک ایسے دور میں جب کہ عصائے شاہی تلوار کے نوک پر حاصل کیا جاتا تھا۔ وسط ایشیا نہ صرف فاتحین کا گوارا بنتا گیا تھا، بلکہ آگے چل کر ابھرنے والے فاتحین کا بھی گوارا بڑا ہوا تھا۔ وسط ایشیا کے شہسوار بابر بار بار حملہ کرتے، یہ شمالی ہندوستان، ایران اور ان سے بھی آگے کے علاقوں پر اور وہاں پر بسائے لوگوں کو فتح کرتے۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی مقامی لوگوں میں رچ بس جاتے۔ بعد میں انہی لوگوں کو ایشیا کی سطح مرتفعات سے ابھرنے والے خانہ بدوش قبائل کی نئی لہروں کے حملے کا سامنا کرنا پڑتا۔ فاتحین کے اس گوارے میں ہی تیموری کی پیدائش ہوئی۔ اس کی فطرت میں جنگ لڑنے کی فطرت رچ بس گئی، ایک ایسا شوق جس کی مثال تاریخ اسلام میں کوئی اور شاید ہی قائم کر سکا۔ نوجوانی سے ہی تیمور پر صوفی شیخ زین الدین رحمۃ اللہ کا بہت اثر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روحانیت سے تعلق رکھنے والی باتوں کو بڑی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چغتائی شہنشاہی تقریباً پارا پارا ہو چکی تھی۔ آخری منگول چغتائی فرما و روایت دریائے آمو کے پیچھے دور تک ہٹ گئے تھے۔ مغول خان تغلق نے ایک تاتاری قازقان کو سمرقند کا وائسرائے مقرر کیا تھا۔ تیمور نے اسی قازقان کا دربار میں پہلی ملازمت حاصل کی۔ جلدی اس نوجوان کی بہادری کا چرچا دربار میں ہونے لگا اور خصوصی شاہی دستہ بہادر کا مرکز نگاہ بڑھ گیا۔ قازقان اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی خوبصورت نواسی الجائی خاتون کے ساتھ شادی کر دی، جس کے نام سے سمرقند کا بی بی خاتون کا خوبصورت مقبرہ معصوم ہے۔ قازقان کی پوتی الجائی خاتون آغا کے ساتھ تیمور کی شادی بڑی کامیاب رہی۔ تیمور کی طرح الجائی بھی مسلمان تھی۔ اس کے دوسرے تاتاری بہنوں کی طرح وہ بھی بے نقاب ہو کر گھوڑے کی سواری کرتی تھی، ملک کے انتظامی امور میں حصہ لیتی، اپنے شوہر کے ساتھ میدان جنگ میں جاتی، اپنے اقتدار کی سرحدوں کے اندر عوامی معاملات میں دلچسپی لیتی۔ تیمور کی خدمت کے صلے میں قازقان نے اس کو منگ باشی یعنی 1000 سواروں کا سردار مقرر کیا۔ لیکن اس دور کی غیر یقینی صورتحال نے تیمور کو امن و چین کی سانس لینے نہیں دیا۔ سارا علاقہ بدامنی سے شربو تھا۔ ہر طرف اسے ہتھیار بند لوگوں کی بہتات تھی جو کہ قابل تھے اور خوش آئند منصوبوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر ایک قابل شخص اپنی جگہ شہرت اور دولت حاصل کرنے کی خوشحال خواب دیکھ رہا تھا۔ اس دوران تاتاریوں کے درمیان آپسی محاذ ارائی میں قازقان مارا گیا اور اس کا علاقہ شورشوں سے بھر گیا۔
हालात पर काबू पाने और अमन कायम करने के लिए शुमाल से मंगोल खान तुगलक आया। तैमूर ने तुगलक का साथ दिया। इनाम में इसे तोमान बाशी यानी 10,000 सवारों को सरदार के खिताब से नवाजा गया। लेकिन जब तुगलक अपनी फौजी छावनी को वापस हुआ तो इसके जालिम सिपहसालार ने तातारियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। इनके उल्मा और तालीम याफ्ता लोगों को कैद में डाल दिया। इनकी औरतों और बच्चों को उठा ले गया। तैमूर ने इसका बेजिगरी से मुकाबला किया। औरतों और बच्चों के लिए जो कुछ वो कर सकता था वो किया। लेकिन तातारी बिखरे हुए थे। इनके इख्तलाफात इस कदर गहरे थे कि वो मुत्तहद होकर मुकाबला ना कर सके। जब मंगोल खान तुगलक को ये पता चला कि तैमूर ने इसके मामूर करदा सिपहसालार से लड़ाई की है तो इसने हुक्म दिया कि तैमूर को गिरफ्तार करके इसे सजाए मौत दी जाए। लेकिन तैमूर एक चालाक जंगजू था। इसने खतरे के एहसास कर लिया और अपनी बीवी और वफादारों के साथ जनूब की तरफ फरार हो गया। अजीम शख्सियत को किस्मत ही बढ़ाती है। अगले चंद सालों के दौरान तैमूर अफगानिस्तान के पहाड़ों और तरमान की सरजमीन के सहराओं में भटकता रहा। इसने सहराओं के तपा देने वाली गर्मियों को भी महसूस किया और हिंदू कश पहाड़ों की तूफानी हवाओं का भी सामना करने की आदत डाल दी। इसी खानाबदोशी के दौरान कंधार के अमीर की मदद से मकामी शोरश को दबाने के लिए जब वो अमीर के रोज दोष लड़ रहा था तो लड़ाई के दौरान इसके पांव में एक तीर लगा। वो जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया। इसीलिए वो तैमूर लंग से भी मशहूर हुआ। इस्लामी तारीख के मुताला से यह पता चलता है कि मुसलमानों ने हमेशा किसी भी तसल्लुत से अपने आप को बचाने के लिए कौमी इत्तेहाद के लिए इस्लाम की नाम का ही सहारा लिया है। इसी के नाम से इत्तेहाद की आवाज लगाई। मंगोलों का जुल्म तातारियों की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। बुखारा और समरकंद के उलमा और सूफियों ने तातारी अमीरों और सरदारों को आवाज दी कि मंगोलों के खिलाफ मतहद का इनका सामना करें। तातारियों ने इनकी आवाज पर लब्बैक कहा। सन 1367 में सरदरिया के मकाम पर मंगोलों के साथ इनकी घुमसान की जंग शुरू हो गई। तमाम तातारी उमरा ने अफगानियों और शुमाली फारस के ईरानियों और तैमूर ने इस जंग में हिस्सा लिया। किस्मत तातारियों के खिलाफ थी। वो जंग हार गए। लेकिन समरकंद शहर इस जंग में दुश्मन के सामने मजबूती के साथ खड़ा रहा। दुश्मन के हर एक हमले के बाद तैमूर की अल्लाह हौसलगी का एतबार इसकी कौम के लोगों में बढ़ता गया। इसकी साबित कदमी, बहादुरी और कायदाना सालियतों ने इन्हें मुतासर किया। तातारी एक बार फिर मुत्तहद होकर जंग लड़ने के लिए तैयार थे। अब सिर्फ एक अच्छे कैद की जरूरत थी। 1368 में उलमा, सूफिया कराम, उमरा और सरदारों का समरकंद में एक इजलास हुआ। उन्होंने आपसी मशवरे के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर तैमूर को अपना सरदार बनाने का ऐलान कर दिया। तैमूरिया सुल्तानत की इब्तिदा इस फैसले से हुई। इसी के साथ इस दुनिया के साथ खुसूसी बाब भी शुरू हुआ। सबसे पहले तैमूर ने समरकंद के अतराफ और कनाफ के इलाकों में अपनी बुनियाद मजबूत की। इसने क्या दोस्त क्या दुश्मन सभी को तोहफे तोहफ, खताबात और जागीरों से नवाजना शुरू कर दिया। इसने इसके जो और बाद कदम उठाया था वो तातारी इलाकों से मंगोलों को निकाल बाहर करना। दरियाए आमू के जनूबी तातारी इलाकों से मंगोलों को पाक किया। फिर दरिया के इस पार मंगोलों के अंदरूनी इलाकों पर इसने हमले शुरू कर दिए। सन 1370 से 1379 के दौरान मंगोलों के साथ कई जंगें हुई। तैमूर फतह याब रहा। अब फरागना की वादी पर से मंगोलों की गिरफ्त खत्म हो गई। समरकंद में मजबूत तैमूरी हुकूमत की कायम के वजह से पड़ोसी रियासतों का इसके खिलाफ उठ खड़ा होना लाजमी बात थी। बहर कैसर और खरासान के तातारी फरागना पर बार बार हमले करने हर एक हमले में दौलत हासिल किया करते थे। इसमें इनका फायदा और नुकसान के सरदार यूसुफ ने तैमूर को चैलेंज किया। दोनों के दरमियान एक फैसलाकुन जंग होने से पहले ही यूसुफ कुदरती मौत मार गया। तैमूर ने आगे बढ़कर खरासान, खेवा, दरियाए ओलोगा के निशेबी इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन्हें अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया। फिर वो जुनूब में अफगानिस्तान की जड़न मुड़ा।
हरात के अमीर गियासुद्दीन को शिकस्त देकर हरात शहर को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। हरात बड़े शहरों में एक शहर था जो सबसे पहले तैमूर के हाथ लगा। इस वक्त हरात की आबादी 2.5 लाख से भी ज्यादा थी। वहां के इल्मी दरसगाह, फनून, तहजीब, मराकज, तरक्की और शोहरत में तबरेज, दमिश्क और दिल्ली की यूनिवर्सिटी का मुकाबला करते थे। तैमूर यहाँ की दौलत, कारीगर, मेहमान सब अपने साथ ले गया। यही तरीका इसने असफान, दिल्ली, तबरेज, दमिश्क और इनकरा पर हमलों के दौरान भी किया। हर एक फतह के बाद समरकंद की दौलत में इजाफा होता गया। शहर नीले गुंबदों की हसीन मसाजिद और खूबसूरत मकबरों की जन्नत बन गया। वस्ते एशिया में अब तैमूर का मुकाबला करने वाला कोई ना था। इसके हुकूमत का झंडा दरिया आमू से लेकर दरिया सिंध तक लहरा रहा था। हिंदू कश पहाड़ों की सतह पर मुर्तफा पर बैठकर यह अजीम फातह यूरोप और एशिया के इस तवील खित्ता अर्ज पर नजर दौड़ा रह सकता था, जिस पर अभी इसका कब्जा नहीं हुआ था। ये इलाके 1336 से 1370 के दौरान फैलने वाली काली प्लेग से तबाह बर्बाद हो चुके थे। अब अमीर तैमूर इस कमजोरी से फायदा उठाने के लिए तैयार था। बैरा कैप्सन के इतराफ मुहिमजोई के दौरान इसका सामना उलागा के तातारियन से हुआ, जिन्हें सुनहरे शाहसवार भी कहा जाता है। इन सुनहरे शाहसवारों ने रूस को 200 सालों तक दबाए रखा था। उन्होंने मशरकी यूरोप में दूर दूर तक घुसते हुए अंग्रेजों पर हमले किए। रूस के हमरा तातारियों को खराज देने पर मजबूर थे। जब कभी महसूल और अदा ना कर पाते तो इनको सख्त सजा दी जाती, इनके इलाकों पर हमले करके लूट मार मचाई जाती। इन सुनहरी शाहसवारों का मुकाबला करने के लिए करना रूसियों के लिए बेकार साबित हुआ, इसलिए कि बदला बहुत तेजी से, इंतहाई बेरहमी से लिया जाता। 1316 में मॉस्को के बादशाह ने 1 लाख किसानों पर मुश्तमिल एक मुसल्लह फौज तैयार की और सुनहरे सवारों की एक फौज को शिकस्त दे दी। ये जंग दरिया डान के किनारे हुई और दूसरे साल सुनहरे सवार फिर वापस हुए, रूसियों पर फतह हासिल की। जिस राह से रूसी पसवा हुए, इस राह की हर एक चीज को तातारियों ने पामाल कर दिया और 1377 में मॉस्को शहर को जलाकर खाक कर डाला। तो दोस्तों, इसके साथ इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल हम इसी वक्त फिर हाजिर होंगे इससे आगे बयान करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।